Then I went to my mama and said to mama, I want to work at your hotel. And actually, I have never thought in my life that I would be a teacher in my life. So मैंने I said to my mama, just please let me work at your hotel for some months, and I will have some experience of hotel lines. Then I would open my hotel, and I would lead my life. तो my mama shouted at me angrily. किसी ने सच ही कहा है. Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. प्रयास करें, परंतु प्रयास एक सफल व्यक्ति बनने का ना करें, बल्कि हमें प्रयास ऐसा करना चाहिए कि हम एक वैल्यू का व्यक्ति बने, हम एक मूल्य का व्यक्ति बने। अगर हमारे जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर समझ सकते हैं कि हम एक मूल्य का व्यक्ति नहीं है। हालांकि द मोटिव ऑफ making this video is to motivate you all. Through this video I would like to motivate all of you. I would like to request all of you to listen to watch this video till the end. Here I am going to tell you all how I learned English and what I got after learning English. इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे स्ट्रगल किया और कैसे इंग्लिश सीखा, और इंग्लिश सीखने के बाद मैंने अपने जीवन में क्या पाया और क्या किया। मैंने अपने जीवन में इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। आई हैड टू स्ट्रगल अ लॉट टू लर्न इंग्लिश इन माय लाइफ। द मैटर इज ऑफ 2012 व्हेन आई हैड कंप्लीटेड माय मैट्रिकुलेशन एज वेल एज गॉट मैरिड। 2011 एंड 2012 की बात है। आफ्टर गेटिंग मैरिड इन 2011 आई पास्ड आउट मैट्रिकुलेशन, एंड देन आफ्टर देयर वाज अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ मी। मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती था, और चुनौती ये था, यू ऑल नो दैट आफ्टर गेटिंग मैरिड देयर इज अ बिग बर्डन ऑन द हेड ऑफ एवरीवन। सेम बर्डन आई हैड ऑन माय हेड, हाउ टू मेक लाइफ, हाउ टू सेटल लाइफ, एंड आई थिंक आई वुड बी एट लीस्ट 16 years old when I got married. So it was very difficult for me to manage, wife. I had no children that time. तो मैं बातें करूंगा कि मैं अंग्रेजी कैसे सीखा। I would not like to talk about my marriage life. That is different thing. But how I learned English. मैंने इंग्लिश सीखने के लिए, मैंने कहा I told you I had to struggle a lot. मेरे को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा इंग्लिश सीखने के लिए। I learned English while working at a hotel. While working at a hotel. But I think no one can do this. No one can do this at present time. अभी कोई भी ऐसा कर नहीं सकता है, परंतु मैंने इंग्लिश सीखा होटल में काम करके। 2013 was such a period for me that was full of a struggle. I was not getting job anywhere, and although I was not matured so much to do job anywhere, but I told you I had got married, so there was big burden on my head. So to find out job easily, I was just searching. I was looking for job here and there, but not finding anywhere because I was not so educated that time. So there was a big challenge in front of me, how to get job. And if I talk about my education, then I had not completed even 12th. So I was just pursuing my 12th that time. So my enter was also not final, and so I was not finding job easily anywhere. And you already can imagine, can anyone get job after completing 12th? No, it's very tough thing. I don't think that one can get job after completing 10th or 12th. So same thing was there with me guys, कि कैसे कुछ काम को ढूंढा जाए और क्या किया जाए ताकि मतलब दो चार पैसे कमाया भी जा सके, क्योंकि शादी हो चुकी थी, और शादी के बाद आप लोगों को तो पता है कि लोगों का बर्डन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं फाइनली आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली चला गया। आफ्टर गोइंग टू दिल्ली, आई कुड नॉट फाइंड जॉब देयर बिकॉज wherever I was going to ask for job, then people were requiring such a candidate who could speak English that time. तो मेरे को इंग्लिश उस समय आती नहीं थी, जरा सा भी नहीं आती थी। तो उसी समय से that time I had made up in my mind that I would definitely learn English one day, and I learned it. तो मैं I would not like to talk about that
व्हाई आई लर्न इंग्लिश, बिकॉज अगर आप ये सोचोगे कि मुझे अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा, आई लाइक टू सजेस्ट एवरीवन कि आप फल का चिंता ना करें, बल्कि काम को आप करें, काम को आप कीजिए, बाकी फल ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा ही। तो मैंने वहाँ पे सोचा कि नहीं, मुझे अंग्रेजी सीखना चाहिए। तो अंग्रेजी सीखा कैसे जाए, तो ये था मेरे सामने कंडीशन कि हाउ टू लर्न इंग्लिश, कि अंग्रेजी सीखा कैसे जाए। तो इसी पे क्या हुआ, मैं ऑलरेडी बताया कि जॉब्स नहीं मिल रहा था, काम की तलाश में इधर उधर जाना, परंतु नॉट गेटिंग द जॉब। तो फाइनली मेरे दिमाग में स्पोकन सीखने का आइडिया पहले से फ्लैश कर रहा था। तो एक्चुअली माय मामा मैटरनल अंकल had a hotel at Jayanagar. Then I went to my mama and said to mama, I want to work at your hotel. And actually I have never thought in my life that I will be a teacher in my life. तो मैंने I said to my mama, just please let me work at your hotel for some months, and I will have some experience of hotel life. Then I would open my hotel, and I would lead my life. So my mama shouted at me angrily. He said, "We are tired of this work. How could you do this?" So I was just very nervous there and frightened as well as. तो मैंने कहा कि okay, no problem, let me. Then suddenly I saw the poster of a spoken class. In front of the hotel there was a building. On the second story of the building, there was a spoken class. तो मैंने देखा पोस्टर को, तो मैंने आई सेड टू माय मामा जी, मैंने अपने मामा जी से कहा कि लेट मी लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखने दीजिए प्लीज़। हो सकता है कि अगर मैं अंग्रेजी सीखूं तो कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ ना कुछ तो सेटल कर लूँगा। तो मेरे मामा जी कहे कि यार ठीक है, दैट्स राइट, बट यू विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम योर एल्डर मैटरनल अंकल। So I went to my elder maternal uncle. I said, "Mama ji, I want to learn English living here. So please let me learn." But my mama, got furious at me. He said, "What will you do? Will you check out any vacancy after learning English?" That time I was completely heartbroken, I can say. दिल काफी ज़्यादा टूट गया, and जो चाह था, the passion I had to learn English, वो खत्म हो गई, क्योंकि because he didn't allow me, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा हार्ड हुआ कि यार वेयर आई वेंट टू आस्क फॉर परमिशन फ्रॉम हिम। तो फिर अगेन आई केम बैक टू माय अंकल, मैटरनल अंकल। आई सेड, मामा, ही इज गेटिंग एंग्री, सो व्हाट शैल आई डू नाउ, टेल मी। देन माय स्मॉल मैटरनल अंकल सेड टू मी, नो प्रॉब्लम, यू जस्ट स्टार्ट लर्निंग, आई विल पे मनी व्हाटएवर द फीस देयर। तो इट वाज माय अंगर मैटरनल अंकल, बाय हु सपोर्ट आई कैन से, जिसकी मदद से मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया। तो गैस प्रॉब्लम ये था कि मेरा जो क्लासेस का टाइम हुआ करता था, दैट यूज्ड टू बी इन इवनिंग टाइम, और बाकी दिन भर होल डे लॉन्ग आई हैड टू स्टे एट द होटल एंड वर्क। तो प्रॉब्लम ये था कि जब मैं स्टार्ट किया सीखने के लिए, तो पहला जो दिन था, आई स्टिल रिमेंबर द डे, सर वाज टीचिंग मी अ स्पेशल स्ट्रक्चर, वाला वाले टू। आप लोग पढ़े होंगे, यू माइट हैव रेड टू, वाला वाले, am to go, is to come, they are to play, like this। तो मेरा ये मैंने स्टार्ट किया वाला वाले से सीखना शुरू किया, वाला वाले से मैंने स्टार्ट किया सीखना। डे बाय डे आई वाज गेटिंग ओनली स्पेशल स्ट्रक्चर आफ्टर स्पेशल स्ट्रक्चर सर वाज टीचिंग मी। तो प्रॉब्लम ये था, आई स्पेंड देयर एट लीस्ट 9 मंथ्स, करीबन 9 महीना मैंने वहाँ पे टाइम दिया, और साथ ही साथ एक तरफ ऑन द वन हैंड आई वाज लर्निंग इंग्लिश, टेकिंग आउट टाइम इन द इवनिंग, and on the other hand I was having to work at the hotel। तो मेरे सामने there was I think my circumstance was too manageable for that time, क्योंकि एक मैं कहूँगा कि एक व्यक्ति he can't manage and he can't think of doing like that as I work hard, I can say। तो उस समय क्या होता, while I was going to classes, some of the people who were there used to make fun of me sometimes। कभी कभी मजाक उड़ाया करते थे, when they used to see me washing plates, pots in the hotel, they used to laugh at me and made fun of me। परंतु मैं कभी उस चीज को बुरा नहीं मानता था, I was never offended with that, मुझे कभी उस चीज का बुरा नहीं लगा, and I neglected everyone and I fully focused on learning। मैंने काफी
लर्निंग में फोकस किया कि नहीं मुझे सीखना, आई हैव टू लर्न, आई हैव टू लर्न, आई हैव टू लर्न, देन यू नो, तो कहा जाता है कि इंसान का अगर डिटर्मिनेशन जो होता है, डिटर्मिनेशन काफी स्ट्रांग रहा तो डेफिनेटली लोग सफलता पाते ही है। तो मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पे सफलता की बात नहीं कर रहा था, मैं एक्चुअली मैं अपने आप को आई वांटेड टू मेक माई सेल्फ या वैल्यूबल मैन, मेरी भी एक वैल्यू होनी चाहिए। जैसा मैंने देखा है कि इंसान का अगर आप पैसे नहीं कमाएंगे, अगर आपके अंदर में कोई क्वालिटी नहीं है तो आपको कोई वैल्यू करेगा नहीं, ये तो फैक्ट है, आप इस चीज को देख सकते हैं। तो लाइफ में एक इंसान को वैल्यू बनाने के लिए उन्हें कुछ अलग करना ही पड़ता है। तो मैंने किसी तरीके से होटल में काम कर करके मैंने किसी तरह से स्पोकन सीखा, परंतु आई वाज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद माय फ्रेंड्स। My friends were also learning English out of the station, so they used to come sometimes to village, and they would meet me and talk with me. Then I was not able to communicate with them. So finally, those people advised me to go to another institute where I could have learned English much better. You know, so at their advice, you know, I went to another place to learn English. परंतु वे तो अलग चीज था, लेकिन वहां पे भी मैंने काफी ज्यादा संघर्ष किया। परंतु आज के बच्चे की बात करूं मैं, उनके पास एवरीथिंग, दे हैव एवरी कन्वीनियंस, एंड डिस्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग दे आर नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश। तो इस मैं ये कहना चाहूंगा कि जब मेरे जैसे व्यक्ति जिसका कोई अस्तित्व नहीं होना और जिसका कोई अच्छा वेल बैकग्राउंड का ना होना, जब व्हेन आई कैन लर्न इंग्लिश, देन why can you not learn English? When I can learn English, then why can you not learn English? तो मैं ये कहूँगा कि लाइफ को बनाने के लिए इंसान को कुछ अलग यूनिक करना पड़ता है। और मैंने जैसा कि कहा, ट्राई नॉट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस बट रेदर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। मतलब एक सक्सेस सफल व्यक्ति बनने का प्रयास ना करें, बल्कि एक वैल्यू का व्यक्ति बनने का प्रयास करें, तो इससे आपको वैल्यू मिलेगा। तो रही बात कि मैंने वैल्यू अपने लाइफ में कैसे पाया और कैसे अपने आप को वैल्यूबल बनाया, तो मैंने जब स्पोकन सीखा, तो स्पोकन सीखने के बाद यू नो आई केम इन टीचिंग लाइन में आया, और टीचिंग लाइन में आने के बाद यू नो ग्रेजुअली आई वेंट ऑन डूइंग वेल, दैट मींस वेल, अच्छा करते गया and today I have my own coaching and I have so many students, and I am just at right place now, and I have my own value. People really give me value and respect me. I'm honored, and I also honor the people, and I honor everyone, each of you, because without your support I think I can't be here. So I can say कि इंसान को वैल्यू बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो आप सफलता के पीछे ना भागे, बल्कि अपने आप को एक वैल्यूबल मैन बनाने का कोशिश करें और काम करें। तो डोंट वरी अबाउट द फ्रूट, जस्ट कीप डूइंग द वर्क, कीप वॉकिंग ऑन द पाथ, डेफिनेटली इट विल टेक यू टू द डेस्टिनेशन। बस इतना ही, आज मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा। हालांकि मेरी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, सो मैनी स्टोरीज आर देयर विच इज अटैच्ड टू माई लाइफ, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू शेयर राइट नाउ, but I will share each and everything about my life with you all, because you are everything for me. So thank you very much. That's all in today's video. I hope you all will take it seriously.